Assalamu alaikum everyone. I again welcome you to the AMP's free online career guidance seminar phase 2. Let's have a look at what AMP is about and how you can contribute as well as receive from it. AMP stands for Association of Muslim Professionals, where our motto is striving for peace and progress. AMP is registered in India, USA, UK, and Australia as a non-profit organization. AMP has completed its 12 years serving our community in the field of education, employment, and empowerment. AMP has a vision to positively impact lives of 10 million people by 2030. AMP's mission is to empower the underprivileged for the greater benefit of the society in general and nation as a whole. AMP's vision to be a model community, which is advanced in education, socially progressive, culturally vibrant, politically influential, and economically dynamic. These are the few achievements of AMP. Our first project is a school development project where 2,800 plus skill development lectures have been given. We have connected with 800 plus schools and 281,000 students have benefited from it. 110 plus teachers training and parenting workshops have also been done. Next is our employment assistance cell, where 360 plus job fairs and job drives have been conducted. 21,000 plus candidates were employed and 220 plus employability trainings were given. 17,000 plus degree students benefited from the employment assistance cell. Next is a scholarship and self-employment. 800 plus higher education scholarships have been given so far, which has helped almost 860 plus orphans education. And 425 plus families have transformed by offering self-employment assistance. We have an AMP resource center with 660 plus career counselors, where 2,500 plus students have been counseled, and there are 50 plus documents on career guidance and 1,500 plus career charts. We have been associated with renowned educationalists and awarded them. We have 50 plus partners for skill training and job fairs, including the state government, and also 100 plus partnered NGOs for various programs. The new digital initiatives by the AMP. AMP has recently launched indiazakat.com, the indiamentors.com, and the ampowerjobs.com. Indiazakat.com is India's first Zakat crowdfunding platform floated by the AMP with a view to bring the Zakat seekers and the Zakat givers on a unified platform. Its objective is to undertake its operation purely with the intent of bringing socio-economic transformation in the lives of the needy and distressed people. The IndiaMentors.com strives for the development of a vibrant and progressive student and young professional community in India. The IndiaMentors.com envisions a fully educated and empowered student community where no one is left out of the wheels of progress and development due to lack of awareness and guidance. ampowerjobs.com is a job portal free for job seekers with comprehensive offerings including skill training and employability training programs. ampowerjobs.com has been specially created by industry professionals voluntarily for the sake of freshers and those affected by the COVID-19 pandemic. AMP has an on-ground presence of 140 plus active chapters, which are spread across 26 states in 16 countries with 6,000 plus active members. We also have an online presence of 125,000 plus members and professionals connected to various social media. To join AMP, visit www.ampindia.org/joinamp. So that was about AMP. Now today, our host for the day is Mr. Samir Fayaz Sheikh. He is the Design Director and Studio Chair at BDP New Delhi, an architect and urban designer with 20 years of professional experience in India and USA. His career of professional work spans across architecture, urban design, and interior design, and his wide and varied experience includes working for design consultancy firms, government bodies, and private developers.
Uh, I heartily welcome you, sir, to the Career Guidance Seminar. Assalamu alaikum, everybody, and a very good evening to everybody who's watching this webinar. And thank you, Fakia, for the wonderful introduction that you've given me. And I would also like to thank AMP for organizing such a wonderful event, which can be very helpful for students to select their careers. And last year also I had given this talk, and hopefully, I've got an opportunity again this year to talk to the students, prospective students, about the career, and hopefully this will be helpful. I just want to make a brief introduction that I will be talking in English mostly. मगर बीच बीच में मैं हिंदी और उर्दू भी इस्तेमाल करूंगा, तो कुछ लोगों को मुझे पता है दे माइट बी मोर कंफर्टेबल विद इंग्लिश, कभी कभी हिंदी, अगर कोई बात है जो हिंदी में या उर्दू में अगर मैं समझा सकता हूं तो मैं उस तरीके से उसको हिंदी में भी बीच बीच में समझाऊंगा. But I'm sure there are people from all over India who might be watching it, and some may be comfortable with some other language also. But I'm limited to only these two languages, English and Urdu. So I'll try to communicate as much as possible through these two languages. So सबसे पहले, I would like to give my introduction. Faki has already told about me, but let me share a PPT which will give a bit more information about. So these are some of the topics that I want to touch upon very briefly today. I know I have very little time. I don't want to bore everybody with a lot of topics, but I just wanted to give something for the students to think about, ताकि उन्हें कुछ idea आ जाए इस field के बारे में. So a little bit about myself. I'm an architect and urban designer. I've done my BArch from Mumbai University in 1999. And then after working for a year, I went and did my master's in urban design from University of Colorado at Denver in the USA. उसके बाद मैंने वहाँ पे 6 साल काम किया, एंड मुझे कभी भी यूएस शिफ्ट होने का मेरा प्लान नहीं था. I always was planning to come back to India and work in India. So after working there, gaining some experience of 6 years in California, I came back in 2008 and have worked in Delhi and in Mumbai since then. Overall, I have about 20 years of experience internationally. And currently, I am a design director and studio chair at VDP New Delhi. VDP is an international design firm, and we are based out of New Delhi. But I am originally from Thane in Mumbai. I'm born and brought up in Mumbai and Thane, and I've done my schooling and my college here. And I'm very familiar with Maharashtra and region. Secondly, I also wanted to tell you that though I have studied abroad and मैंने US में पढ़ाई की है, वहाँ पे काम किया है, I don't come from a very wealthy background. So जो कुछ भी मेरी पढ़ाई हुई वो ज़्यादातर scholarships और grants के through हुई है. And just wanted to make sure that if you want to study and do advanced studies or international studies or get up to a certain level, it's not necessary that you come from a wealthy or a privileged background. So that's something that I wanted to put out there. I know some people are raising hands, but I think we'll keep, please hold your questions. हम बाद में इस session के बाद में we'll have a question and answer session, and then I'll answer most of the questions that people might have. So please keep jotting down your questions and any of your thoughts that you're having. And इस presentation के बाद we'll have about 10 minutes जहाँ पे हम questions को answer करेंगे. तो just a little bit about architecture, कि सब लोग बहुत लोगों को पता नहीं होता कि आर्किटेक्चर ये चीज क्या है. सबको पता है कि बिल्डिंग बनाते हैं, एक इमारत बनाई जाती है, शहर बनाते हैं, बट बेसिकली क्या है ये आर्किटेक्चर? इज इट इंजीनियरिंग? वो तो सिविल इंजीनियर भी करते हैं, स्ट्रक्चरल इंजीनियर भी बिल्डिंग्स बनाते हैं. तो ये आर्किटेक्चर क्या है? आई मीन बिल्डिंग तो अगर सभी लोग बना रहे हैं तो आर्किटेक्चर क्या है?
तो आर्किटेक्चर बेसिकली एक ये होता है कि इट इज द आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स। तो ये इसमें कुछ साइंस भी है, कुछ आर्ट भी है, कुछ टेक्नोलॉजी भी इन्वॉल्व है। तो ये एक एक कि एक बिल्डिंग की प्लानिंग कैसे की जाए, अगर सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ, यू नो, इट्स अबाउट हाउ यू ले आउट अ बिल्डिंग, हाउ डज अ बिल्डिंग वर्क, एंड नॉट जस्ट हाउ डज अ बिल्डिंग स्टैंड, बट हाउ इट वर्क्स, उसकी प्लानिंग, वो आर्किटेक्चर है। हाउ डज इट लुक, उस वो फ्रॉम आउटसाइड हाउ डज इट लुक, उसके मटेरियल्स क्या यूज हो रहे हैं, वो बिल्डिंग कौन यूज कर रहा है, कैसे यूज हो रही है वो बिल्डिंग। तो ये सारी चीजें मिलकर आर्किटेक्चर होती है, राइट। मैं और आगे इसके बारे में बताऊंगा। एंड और आर्किटेक्चर अगर हम देखे जाए तो in any city if you go, the first thing that you notice is are the buildings, राइट। अगर हम किसी भी सिटी की अगर बात कर लें तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में आता है उसकी उसकी बिल्डिंग्स के बारे में आता है, यू नो, कि कितनी खूबसूरत है वो बिल्डिंग, कितनी वो जैसे हम बॉम्बे के बारे में अगर सोचे तो गेटवे ऑफ इंडिया है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है, ये सारी बिल्डिंग्स हमारे हमारे दिमाग में आती है। हैदराबाद के बारे में सोचो तो चार मीनार आता है, आगरा के बारे में सोचो तो रेड फोर्ट और फतेहपुर सीकरी और ताजमहल हमारे दिमाग में आता है। तो ये बिल्डिंग्स जो है ये एक कल्चरल सिंबल बन जाती है। सो इट इज नॉट ओनली एक बिल्डिंग या एक इस्तेमाल करने के लिए एक जगह नहीं है, मगर वो एक आइडेंटिटी देती है एक शहर को। तो बहुत जरूरी है कि वो बिल्डिंग्स कैसे बनाई जाए, तो उसमें आर्किटेक्चर का बहुत रोल होता है कि एक शहर को, एक सिटी को क्रिएट करने में, उसको एक फॉर्म देने में आर्किटेक्चर का एक बहुत बड़ा रोल है। और यू नो, पुरानी सिविलाइजेशंस भी अगर देख लो, सो उनके जब भी हम उनके आर्कियोलॉजी करते हैं, और तो उन सिविलाइजेशंस के बारे में जानने के लिए हम क्या स्टडी करते हैं, हम आर्किटेक्चर स्टडी करते हैं। तो आर्किटेक्चर और कल्चर जो है वो बहुत बहुत linked है basically. So it is not only about construction and cement and concrete, but it is so much about the culture that you are trying to represent through your buildings. So that is in essence what architecture is. I mean, इसके ऊपर तो हम बहुत, you know, I can give another long lecture on this, but you know, just to give you an idea कि, you know, it is the architecture जो, it is not just about cement concrete materials, but it is about expressing your culture and your the values of a city through buildings basically. So that is what architecture is all about. थोड़ा सा प्रैक्टिकल अगर हम बात करें तो इंडियन जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो काफी बूम कर रही है, अभी काफी कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ठीक है, पिछले 2 साल में थोड़ा सा स्लो डाउन है पूरे ओवरऑल इकोनॉमी में, ग्लोबल इकोनॉमी में, और थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन पे भी असर पड़ता है और बिल्डिंगें थोड़ी कम बनती है। बट ओवरऑल अगर आप लॉन्ग टर्म में अगर देखें तो कंस्ट्रक्शन और जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री है वो काफी ग्रो हो रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और स्पेशली एशिया में और स्पेशली इंडिया में, कि यहाँ पे इतनी जरूरत है हमारे जीडीपी ग्रोथ की और न्यू बिल्डिंग्स की, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर की, कि ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है काफी काफी ग्रो होगी। तो फॉर एग्जांपल ये कुछ नंबर्स हैं यहाँ पे कि 30 मिलियन पीपल एम्प्लॉयड होते हैं इंडियन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, और टोटल जो एसेट है कंस्ट्रक्शन का वो 200 बिलियन इंडियन रुपीज है basically, and it makes up to about 5% of the nation's GDP, which is not very simple, right? And मगर अगर आप देखो तो इस पूरे इंडस्ट्री में आर्किटेक्ट्स जो है वो 90,000 है। हमारी कंट्री की अगर आप पॉपुलेशन देख लो और उस हिसाब से जितना काम हो रहा है और जितने आर्किटेक्ट्स हैं, ये तो बहुत कम आर्किटेक्ट्स हैं एक्चुअली। हमें बहुत ज्यादा इंजीनियर्स और बहुत ज्यादा आर्किटेक्ट्स की जरूरत है अगर हमें इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, इस पूरे फील्ड को अगर एक अलग ही लेवल पे पहुंचाना है। जितनी जरूरत है उस हिसाब से आर्किटेक्ट्स इंडस्ट्री में काफी कम है, क्वालिफाइड आर्किटेक्ट्स जो है। तो ये जो 90,000 ये नंबर जो यहाँ पे दिख रहा है, ये दिस इज अ वेरी लेस नंबर. It looks very big, but compared to our GDP, compared to how much is required, and compared to our population, it's a very small number. So you definitely need more architects, more qualified architects coming out into industry and practicing architecture, right? Now अभी अच्छा ठीक है, आर्किटेक्ट तो बन गए, मगर ये आर्किटेक्ट चीज क्या होती है? सो आर्किटेक्ट इज लाइक, इट्स अ प्रोफेशन. सो ये प्रोफेशन वर्ड क्या है?
प्रोफेशन हम जब बोलते हैं कि आर्किटेक्ट एक प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल तो सभी होते हैं, मगर जैसे अगर आप बोल दो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, डॉक्टर्स हो गए, देन वी हैव डेंटिस्ट, वी हैव लॉयर्स, वी हैव कंपनी सेक्रेटरीज, सो ये सारे जो बोले इनको प्रोफेशंस बोला जाता है, बिकॉज इसमें क्या होता है कि देयर इज अ स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दैट यू हैव टू गो थ्रू to to get qualified as an architect. There is a licensing body. So to become an architect, you need to have a license to practice architecture. To become a doctor, you need to have a license for a doctor, whether it's a dentist or a MBBS doctor or an MD. एक गवर्निंग बॉडी होती है, मेडिकल एसोसिएशन या डेंटल एसोसिएशन या बार काउंसिल होता है. तो टू प्रैक्टिस लॉ यू नीड अ लाइसेंस, टू प्रैक्टिस चार्टर्ड अकाउंटेंसी यू नीड अ लाइसेंस. सेम थिंग आर्किटेक्चर के लिए भी आपको एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है. यू हैव टू गो थ्रू the learning of architecture and then you have to get a license, right? And after getting the license you become a part of a professional body, of the governing body. In this case this is the Council of Architecture in India, which governs the conduct of an architect. So once you become an architect, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है आप पर कि आप कोई इलीगल काम नहीं कर सकते. आपका बिहेवियर जो है, आपका जो प्रोफेशनल कंडक्ट है वो रेगुलेटेड होता है. सो दैट्स व्हाट एन आर्किटेक्ट मीन्स. सो आप यू गो थ्रू एन आर्किटेक्चर, आपका 5 years का कोर्स आप करते हो, आप लाइसेंस गेन करते हो, एंड देन यू हैव टू बिहेव एज अ प्रोफेशनल आर्किटेक्ट एंड sort of respect the governing council of architecture basically. And then at the same time, as an architect you have to provide solutions. So आपके पास clients होंगे, आप you will act on behalf of the client as a principal consultant and then give them solutions. So चाहे वो कोई साइट के बारे में, कोई साइट लेके आ जाए, मुझे यहाँ पे बिल्डिंग बनानी है, मुझे यहाँ पे घर बनाना है, ऑफिस बनाना है, कैसे बना सकता हूँ, इतनी साइट है. तो उसके लिए जो सॉल्यूशंस देने, जो क्रिएटिव सॉल्यूशंस देने, वो आर्किटेक्ट का काम होता है कि कौन से टाइप के मटेरियल्स यूज होंगे, किस टाइप की बिल्डिंग बनेगी, कितनी ऊंची बिल्डिंग बनेगी, उसके कौन से रेगुलेशंस फॉलो होंगे, उसको कैसे डिजाइन किया जाएगा, वो कैसे दिखने में कैसी होगी, वो सारी चीजें जो बिल्डिंग है वो आर्किटेक्ट हेल्प्स डिजाइन इट फॉर द क्लाइंट बेसिकली. सो ये आर्किटेक्ट का काम होता है कि ये दिस इज व्हाट एन आर्किटेक्ट डज. ये एक बहुत ही इंटर डिसिप्लिनरी फील्ड है. नाउ इंटर डिसिप्लिनरी का मतलब क्या हो गया कि इसमें कोई एक चीज से रिलेटेड नहीं है. इसमें अगर आप देखा जाए तो आर्किटेक्चर इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मदर ऑफ ऑल आर्ट्स. सो जैसे आपका फाइन आर्ट्स हुआ, आपका स्कल्पचर है, आपके परफॉर्मिंग आर्ट्स है, आपके लिटरेचर है, तो ये सारे जो आर्ट्स है, तो आर्किटेक्चर जो है इट इज कॉल्ड द मदर ऑफ ऑल आर्ट्स. मतलब इसमें ये सारी चीजों का यूज हो सकता है और इसमें आपको सारे सेंसेस को यूज करके आपको ये करना है. इट इज अ विजुअल सेंस, इसमें आपका हियरिंग इन्वॉल्व है, इसमें आपका टच इन्वॉल्व है, टेस्ट टेस्ट नहीं है लेकिन मगर मतलब ये बहुत सारी सेंसेस को यूज करके आपको करना होता है. सो उसमें साइंस भी इन्वॉल्व है, तो उसमें इंजीनियरिंग है, आपको मैथमेटिक्स आना है, आपको साइंस में इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको आर्ट्स में इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट होना चाहिए. सो एक बिल्डिंग बनाने के लिए आपको बेसिक मैथ्स की नॉलेज होनी चाहिए, आपको बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री या साइंसेस की नॉलेज होनी चाहिए, आपको आर्ट की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, पेंटिंग, स्कल्पचर, एस्थेटिक्स, उसकी नॉलेज होनी चाहिए, आपको टेक्नोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए कि ये कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाए, स्टील कैसे, आरसीसी कैसे, उसमें स्टील क्या यूज हो, फुटिंग्स कैसे आए. तो टेक्नोलॉजी एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है. प्लस एट द सेम टाइम टू बी अ वेरी गुड आर्किटेक्ट, टू बी अ वेरी क्रिएटिव आर्किटेक्ट, आपको सोशल साइंसेस, मतलब यू हैव टू हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोसाइटी, ऑफ हाउ पीपल बिहेव, ऑफ द कल्चर ऑफ अ प्लेस. तभी जाके आप एक अच्छी बिल्डिंग एज अच्छे आर्किटेक्ट बन सकोगे. सो इंटरडिसिप्लिनरी का ये हुआ मतलब कि आप ये जो फील्ड है इसमें जितना करो उतना कम है, कि इसमें बहुत सारी चीजों को आप यूज करके आप कर सकते हो. जितने जितने फील्ड्स को आप मिलाकर आप अपने थॉट प्रोसेस में, आपके आपके सोच में आप लाओगे, द बेटर योर बिल्डिंग, द बेटर आर्किटेक्ट यू विल बिकम, राइट. एट द सेम टाइम ये जो काम है इसमें
टेबल पे भी बैठ के काम होता है। अब फॉर एग्जांपल मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, या कोई भी टिपिकल आर्किटेक्ट की जो लाइफ होती है उसमें कुछ काम होता है जो हम बैठ के अकेले में बैठ के हम ड्राइंग करते हैं, हम डिजाइनिंग करते हैं, हम सोचते हैं। ठीक है, टेबल पे कंप्यूटर पे बैठ के काम होता है, ड्राइंग्स हम बनाते हैं। फिर एक कुछ काम होता है कि हम मीटिंग्स करते हैं, हम जाते हैं ऑफिस के बाहर जाते हैं, हमारे टीम के साथ मीटिंग करते हैं, हम क्लाइंट के साथ मीटिंग करते हैं, हम जो बाकी के जो दूसरे कंसल्टेंट्स होंगे, इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स होंगे, उनके साथ मीटिंग करते हैं। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। फिर कुछ काम होता है हमारा जो हमें जाके साइट पे जाके देखना है, जब बिल्डिंग एक्चुअली बन रही है। तो आर्किटेक्चर का काम, आर्किटेक्ट का काम तो ये नहीं है कि सिर्फ वो पेपर पे या कंप्यूटर पे ड्राइंग बना दे। एक्चुअल आर्किटेक्ट का काम होता है कि वो बिल्डिंग एक्चुअली कंस्ट्रक्ट हो, तो साइट वर्क भी होता है। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑफिस वर्क, मीटिंग्स, साइट वर्क, ये सारों का कॉम्बिनेशन है। तो काफी इंटरेस्टिंग है बेसिकली, कि सिर्फ ऑफिस में बैठने वाला काम नहीं है, यहाँ पे काफी आउटडोर वर्क भी है। आपको साइट पे जाना है, आपको चेक करना है बिल्डिंग आपने जो बनाई है उस हिसाब से इज इट गेटिंग कंस्ट्रक्टेड एज पर योर डिजाइन। सो इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज आप कोई एक एक काम नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ कंप्यूटर पे बैठ के काम नहीं कर रहे हो, आप बहुत ही अलग अलग टाइप के आप काम कर रहे हो इन दिस फील्ड। नाउ लेट मी कम टू के आर्किटेक्ट्स डिजाइन क्या करते हैं। पहले में क्या बिल्डिंग्स, मतलब क्या बिल्डिंग्स होते हैं। तो या तो आप हाउसिंग कर सकते हो, हाउसिंग की बहुत जरूरत है इंडिया में, स्पेशली अफोर्डेबल हाउसिंग की। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आपको रियलाइज होगा कि हाउसिंग प्राइसेस कितने बढ़ गए हैं। आई मीन ऑल द मेट्रो सिटीज, चाहे वो मुंबई हो या दिल्ली हो या इवन बैंगलोर ना हो, ऑल दीज मेट्रो सिटीज में हाउसिंग प्राइसेस आर स्काई रॉकेटिंग। मतलब वो अफोर्डेबल ही नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में कि हम ऐसे घर कैसे बनाएं कि वो अफोर्डेबल हो, तो इसमें आर्किटेक्ट्स का काफी बड़ा रोल होता है कि टू डिजाइन हाउसिंग एंड टू डिजाइन समथिंग विच इज ऑल्सो अफोर्डेबल। ऑफिस बिल्डिंग्स एवरीवेयर, नए नए ऑफिसेस बन रहे हैं, बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में आ रहे हैं, तो उनको ऑफिस स्पेस की जरूरत होती है। तो वो ऑफिस स्पेसेस, ऑफिस बिल्डिंग्स कौन डिजाइन करता है? आर्किटेक्ट्स करते हैं। एजुकेशनल बिल्डिंग्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज है, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, हायर सेकेंडरी, ये सारे जो एजुकेशनल बिल्डिंग्स हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, ये भी आर्किटेक्ट्स करते हैं। रिटेल एंड शॉपिंग, मॉल्स आप जाते हो, शॉपिंग करते हो, एंटरटेनमेंट होता है, मल्टीप्लेक्सेस में जाते हो, ये सारी चीजें भी आर्किटेक्ट्स के परव्यू में आते हैं, ये डिजाइन करते हैं। हॉस्पिटल्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, स्पेशली अभी जो कोविड सिचुएशन है, यहाँ पे बहुत सारे हॉस्पिटल्स की और जरूरत है हमें इंडिया में। तो ये तो एक टाइप का स्पेशलाइजेशन हो जाता है आर्किटेक्ट्स के लिए, कि वो हॉस्पिटल में स्पेशलाइज करके, हॉस्पिटल्स बहुत सारी जरूरत है। होटल्स एंड हॉस्पिटैलिटी, होटल्स, रिसोर्ट्स, रिक्रिएशन एंड एंटरटेनमेंट स्पेसेस, ये सारी चीजें हैं जो आर्किटेक्ट्स डिजाइन करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन बिल्डिंग्स है ना, आजकल, पहले तो गवर्नमेंट हमारे रेलवे स्टेशन डिजाइन करते थे, अभी तो हमें हमारे एयरपोर्ट्स, हमारे मेट्रो स्टेशन, हमारे ट्रेन स्टेशन, ये सारे, अब अगर आप देखोगे, अगर आपने ट्रैवल किया है कभी, तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से डिजाइन हो रहे हैं। ये कौन कर रहा है? आर्किटेक्ट्स कर रहे हैं, इंजीनियर्स कर रहे हैं। ठीक है, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, लैब्स बन रही है, वो लैब्स के लिए बिल्डिंग्स बनानी पड़ती है, तो वो आर्किटेक्ट्स करते हैं। स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, स्टेडियम्स, अरीनाज, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस, रिलीजियस बिल्डिंग्स, ऑफ कोर्स आपके टेम्पल्स, चर्चेस, मॉस, वो भी बनते हैं। एंड इवन ब्रिजेस, ब्रिजेस जो एक्चुअली इज वो इंजीनियरिंग के अंडर आता है, मगर अगर आपको ब्रिज, बहुत ही फैंटास्टिक ब्रिज अगर बनाना है, तो बहुत सारे आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स के साथ मिलके ब्रिजेस भी डिजाइन करते हैं, एंड दोज ब्रिजेस बिकम लैंडमार्क्स, कि वो शहर का एक सिंबल बन जाता है। तो ये सारी चीजें एक आर्किटेक्ट टिपिकली डिजाइन करता है ना। कभी कभी होता है कि एक आर्किटेक्ट या एक आर्किटेक्चर फर्म ये सारे बिल्डिंग्स डिजाइन करे, कभी कभी वो एक एक किसी एक फील्ड में या किसी एक सेक्टर में स्पेशलाइज करते हैं, कि कोई हाउसिंग में स्पेशलाइज कर रहा हो, कोई हॉस्पिटल्स में स्पेशलाइज कर रहा हो, बिकॉज इतना कुछ करने को है कि एक आर्किटेक्ट या एक आर्किटेक्चर फर्म ये सारी चीजें नहीं कर पाती। तो कुछ लोग स्पेशलाइज करते हैं, या कुछ लोग फोकस करते हैं कि एक ही सेक्टर या एक ही बिल्डिंग टाइपोलॉजी में दे कैन वर्क।
आफ्टर दैट वेरी क्विकली कमिंग टू, ठीक है आपने पढ़ाई तो कर ली, आपने थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी गेन कर लिया, आपने लाइसेंस भी ले लिया, अब हायर कौन करेगा हमें, हम किसके पास काम करें? तो इसमें हु हायर्स आर्किटेक्ट्स बेसिकली? सो सबसे पहले तो प्राइवेट डेवलपर्स हैं बहुत सारे। अब इंडिया में लास्ट कुछ सालों में देर आर मेनी प्राइवेट डेवलपर्स हु आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क, लॉट ऑफ टाउनशिप्स, लॉट ऑफ बिल्डिंग्स, हाउसिंग, रिटेल। तो दे नीड अ लार्ज टीम of engineers, of site engineers, of architects, of marketing people, बहुत सारे लोग होती हैं। तो इन हाउस वो लोग एक डिजाइन टीम बनाते हैं जहां पे उनको इन आर्किटेक्ट्स की जरूरत होती है। तो प्राइवेट डेवलपर्स एक है जहाँ जो आर्किटेक्ट्स को हायर करते हैं। गवर्नमेंट एजेंसीज हायर करती हैं, चाहे वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस हो या डेवलपमेंट अथॉरिटीज हो, जैसे MMRDA, DDA, BDA जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज है, या PWD पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, या जहां पर भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, बिल्डिंग से रिलेटेड अगर जो भी चीजें हैं, सिडको, सिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड, वो गवर्नमेंट एजेंसीज आर्किटेक्ट्स को हायर करती हैं। कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जैसे बहुत बड़े कंपनीज हैं जो खुद के बिल्डिंग्स बना रहे हैं, वो लोग इन हाउस, जैसे फॉर एग्जांपल बिग कंपनीज लाइक HPCL एंड BPCL एंड IOCL, ये लोग तो कंटिन्यूसली हम उनका कुछ ना कुछ कैंपस पे चेंजेस करते रहते हैं, तो उनको इन हाउस दे नीड आर्किटेक्ट्स, तो वो लोग हायर करते हैं। ट्रस्ट होते हैं, काफी ट्रस्ट और NGOs होते हैं जो आर्किटेक्ट्स हायर करते हैं, इन हाउस नहीं, मगर उनसे काम करवाने के लिए एज अ कंसल्टेंट उनको हायर किया जाता है। इंडिविजुअल बिजनेस ओनर्स है, जैसे किसी का छोटा सा फैक्ट्री है, किसी का छोटा सा शॉप है और उसको कुछ काम करवाना है, तो वो लोग आर्किटेक्ट्स को हायर करते हैं। इंडिविजुअल होम ओनर्स है, किसी को बंगलो बनाना है, किसी को अपना घर बनवाना है, किसी को अपनी छोटा सा हाउस बनाना है, तो वो लोग आर्किटेक्ट्स को हायर करते हैं। तो ये सारी लोगों को आर्किटेक्ट्स की जरूरत पड़ती है। प्राइवेट डेवलपर्स आर्किटेक्ट्स हायर करते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ट्रस्ट है, ट्रस्ट जो बहुत सारे स्कूल्स हैं और ये सब ये ट्रस्ट बनाते हैं बेसिकली, तो उनको आर्किटेक्ट्स की जरूरत पड़ती है। इंडिविजुअल बिजनेस ओनर्स हैं, इंडिविजुअल होम ओनर्स हैं। सो ये सारा जो ग्रुप है, अब ये तो मैंने एक थोड़ा सा एग्जांपल दिया, इससे ज्यादा भी कुछ लोग हो सकते हैं, इससे ज्यादा भी क्लाइंट्स हो सकते हैं, मगर ये आपका बन जाता है क्लाइंट बेस। तो यहां से मतलब दीज आर द पीपल दैट विल गिव यू वर्क एज एन आर्किटेक्ट, कि अगर आप आर्किटेक्ट बन जाओ तो या तो आपको प्राइवेट डेवलपर से काम मिलेगा, या गवर्नमेंट एजेंसी से काम मिलेगा, या कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन से मिलेगा, या ट्रस्ट, या इंडिविजुअल बिजनेस ओनर्स, या इंडिविजुअल होम ओनर्स। लोग अपना इंटीरियर्स करवाते हैं वहां, उसके लिए भी वो लोग आर्किटेक्ट्स हायर करते हैं, तो वो भी आपके क्लाइंट हो गए। तो इन सब लोगों को आर्किटेक्ट्स की जरूरत पड़ती है। नाउ when you become an architect, what are the skills that are required? skills मतलब आपके skills आप समझते हैं ना, बेसिकली जो आपको क्या आना चाहिए, आपके आपके जो skills हैं वो एज एन आर्किटेक्ट what you should know। एक तो डिजाइन स्किल्स है, यानी आपके एस्थेटिक्स, आपके जो लेआउट है, आपका जो सेंस ऑफ बैलेंस, सेंस ऑफ प्रपोर्शन, ये सारा डिजाइन स्किल्स में आता है। सेंस ऑफ कलर, इन सबको हम डिजाइन स्किल्स में उसको क्लब करेंगे। तो आपके डिजाइन स्किल्स काफी स्ट्रांग होने चाहिए। आपका आपका जो विजुअलाइजेशन स्किल्स है, जो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन स्किल्स हैं, वो काफी स्ट्रांग होना चाहिए। फिर आपको एट द सेम टाइम यू नीड अ लॉट ऑफ टेक्निकल नॉलेज, कि बिल्डिंग बनाने के लिए इट इज नॉट जस्ट कि आपने कुछ खूबसूरत चीज बना ली पेपर पे वो बन जाएगी, वो बनाने के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ टेक्निकल नॉलेज। so that also becomes a part of your skill. The more you are knowledgeable about construction and the technical knowledge, the better architect and the better architecture you can produce, right? You should also know about costing, शेड्यूलिंग, प्रोजेक्ट इकोनॉमिक्स। तो मटेरियल्स की कॉस्ट क्या है, बिल्डिंग बना, सबसे पहले तो इंडिया में गाड़ी भी जब लोग खरीदते हैं तो उसका प्राइस देखते हैं पहले, घर खरीदते हैं तो पहले उसका प्राइस देखते हैं। तो हर चीज के लिए प्राइस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो एज एन आर्किटेक्ट आपका काम और आपका स्किल ये भी है कि आप वो उसकी जो कॉस्टिंग है वो कैसे करें। तो आपको आपका थोड़ा सा मनी से रिलेटेड जो माइंड है, कैलकुलेशन से रिलेटेड माइंड है, जो लेफ्ट ब्रेन थिंकिंग है, वो भी उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, फ्रॉम अ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, एज एन आर्किटेक्ट बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं। सो आपको उसके लिए भी
you have to be very skillful, and at the same time knowledge of codes and regulations, right? So हर building, हर city के कुछ codes होते हैं, फायर कोड्स होते हैं कि बिल्डिंग की हाइट क्या होनी चाहिए, उसका एरिया क्या होना चाहिए, उसका एफएसआई क्या होना चाहिए, तो उस चीजों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए. सो वो जो आपने ये जो डायग्राम है दैट यू सी ऑन द राइट हैंड साइड, it's a Venn diagram which shows the three basic skills that you need to become a good architect, right? Design skills, टेक्निकल स्किल्स एंड बिजनेस स्किल्स, राइट? ये तीनों स्किल्स अगर आप एक्वायर कर लो, देन यू कैन बी अ गुड आर्किटेक्ट. ना इसका मतलब ये नहीं है कि इमीडिएटली आफ्टर ग्रेजुएटिंग, आफ्टर योर 5 years यू विल गेट दिस स्किल. ये स्किल्स अचीव करने के लिए काफी टाइम लग जाता है. यू हैव टू वर्क, यू हैव टू गेन एक्सपीरियंस, एंड देन यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स दी स्किल्स टू बिकम. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डॉक्टर भी बन जाओ, so it is very rarely पॉसिबल कि आप इमीडिएटली डॉक्टर बन के आप बाहर से निकल जाओ और आपको कोई बड़ा ऑपरेशन मिल जाए, राइट? वो पॉसिबल नहीं होता. अगर आप एक्सपीरियंस ले लो तभी आपको उस टाइप के पेशेंट्स मिलेंगे, उस टाइप का सर्जरी मिलेगा. तो सेम थिंग विथ आर्किटेक्चर एज वेल, राइट? अब तो ये सारा आईटी का जमाना है. तो अब जब व्हेन आई वाज वर्किंग और व्हेन आई वाज एक्चुअली स्टडीइंग आर्किटेक्चर, उस टाइम पे तो कंप्यूटर भी, मतलब कैड कंप्यूटर भी काफी नया था, और ऑटो कैड जो आजकल आर्किटेक्ट्स यूज करते हैं, रेविट जो आजकल उस टाइम पे तो था ही नहीं. हम सारे लोग पेंसिल और वो टी स्केल और टी स्क्वायर और उसी से ड्राइंग्स बनाते थे, फ्री हैंड ड्राइंग्स बनाते थे. उसके बाद लेकिन अभी लास्ट 20 years में बहुत बहुत डेवलपमेंट हुआ है आईटी और सॉफ्टवेयर में. और अभी सारे जो आर्किटेक्ट्स हैं, जितने भी नए आर्किटेक्ट्स हम ऑफिस में हायर करते हैं, एवरीबडी, बहुत कम लोगों के पास वो ड्राइंग और स्केचिंग का स्किल होता है. एवरीबडी इज वेरी गुड ऑन ऑटोकैड, ऑन कंप्यूटर, ऑन बिम, रेविट. तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर स्किल्स हैं जो एज एन आर्किटेक्ट यू हैव टू स्टार्ट लर्निंग, राइट? फोटोशॉप, हैंड स्केचिंग, फोटोग्राफी आपको आनी चाहिए अच्छी तरह से, एमएस वर्ड वगैरह तो है ही. प्लस एट द सेम टाइम जो सॉफ्ट स्किल्स जो बोला जाता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स, वर्बल स्किल्स, आप कैसे बोल रहे हो, आप अपने आइडियाज को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, आपने आपके क्लाइंट्स को आप कैसे कन्विंस कर रहे हो, आप उनको कैसे मना रहे हो कि ये बिल्डिंग जो है या ये जो डिजाइन जो ये सही है. तो वो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि रियल एस्टेट का ट्रेंड्स क्या है, वहां पे टेक्नोलॉजी के क्या क्या है. तो यू विल ऑलवेज हैव टू कीप abreast of whatever is happening in the industry continuously, right? So this so much, I mean, I don't want to give you an impression कि ये बहुत कुछ है, लेकिन ये as to be a good architect you'll have to need all these things, right? आर्किटेक्चर स्कूल में टिपिकली आप ये सारे सब्जेक्ट्स सीखते हो, यू कैन वेरी क्विकली गो थ्रू इट. बट इन योर 5 years आप ये सारे सब्जेक्ट सीखते हो, आप ग्राफिक डिजाइन सीखते हो, आप आर्ट हिस्ट्री सीखते हो, आप हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर सीखते हो, आप आर्किटेक्चरल डिजाइन सीखते हो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में सीखते हो, मटेरियल्स और उसके एप्लीकेशंस के बारे में सीखते हो, सर्वे कैसे करना है, बिल्डिंग सर्विसेज, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, एचवैक के बारे में आप ब्रीफली सीखते हो, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन सीखते हो, लैंडस्केप, अर्बन डिजाइन, बायलॉज, कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स कैसे बनानी है. तो ये जो 5 साल का जो कोर्स है आपको एक बेसिक फंडामेंटल नॉलेज दे देता है कि आप बाहर जाके आप एक अच्छी तरीके से आप अपना करियर स्टार्ट कर सके, राइट? सो दिस इज व्हाट यू लर्न इन आर्किटेक्चर स्कूल, राइट? अब आर्किटेक्चर स्कूल के बाद what do we do, how do we go about it? Usually 10+2 के बाद हम आर्किटेक्चर करते हैं. ठीक है, 5 साल का कोर्स होता है नॉर्मली, और वो 5 साल के कोर्स के बाद अगर आप देखो यहाँ पे काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट से आपको लाइसेंस मिलता है. सो अगर आपने सेटिस्फैक्टरी वो कोर्स कंप्लीट किया है, सारे जो रिक्वायरमेंट्स है वो आपने कंप्लीट किए हैं, तो COA विल गिव यू अ लाइसेंस एंड देन यू कैन डायरेक्टली प्रैक्टिस. सो आप अपना आपका जो प्रैक्टिस है, इंडिविजुअल प्रैक्टिस है, वो इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हो. दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इमीडिएटली प्रैक्टिस ना स्टार्ट करके आप एमआर्च करें, मास्टर इन आर्किटेक्चर करें, जो 2 साल का कोर्स होता है बेसिकली. वो 2 साल का कोर्स करने के बाद आपके पास एक थोड़ा सा और नॉलेज आ जाता है, आपके पास और थोड़ा थ्योरेटिकल नॉलेज आता है, आपको थोड़ा सा और एक्सपीरियंस मिलता है, आपके स्किल्स थोड़े से और डेवलप हो जाते हैं, आपका एक्सपोजर थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, स्पेशलाइजेशन हो जाता है. लाइक फॉर एग्जांपल आप एमआर्च कर सकते हो हॉस्पिटल डिजाइन में, राइट? सो एमआर्च करने के बाद जैसे जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स या मेडिकल फील्ड में भी होता है, अब एमबीबीएस करते हो आप जनरल प्रैक्टिशनर बन सकते हो, आपने स्पेशलाइजेशन कर लिया
तो आप किसी चीज के स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, ऑन्कोलॉजी कर सकते हो, यू नो जो भी है, कोई भी स्पेशलाइजेशन आप कर सकते हो, बेसिकली गायनाकोलॉजी कर सकते हो। तो वो एक ऑप्शन है। अगर आपको और भी आगे पढ़ना है, आपको आर्किटेक्चर में बहुत इंटरेस्ट है, आपको रिसर्च करना है, तो एमआर्च के बाद आप पीएचडी करते हो। पीएचडी यूजुअली अगर आपको टीचिंग और रिसर्च में करना है तो 3 to 5 years का पीएचडी होता है, जो किसी भी रिलेटेड फील्ड में आप कर सकते हो। और उसके बाद यूजुअली यू कैन गो इनटू टीचिंग एंड रिसर्च एंड राइटिंग, ये सारी चीजें आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ऐसे नहीं कि आप पीएचडी के बाद प्रैक्टिस नहीं कर सकते, बट मोस्टली अगर आप पीएचडी कर रहे हो, मतलब यू आर गेटिंग इनटू मोर इनटू द डेप्थ ऑफ अ फील्ड, and that is usually helpful when you want to impart knowledge, when you want to teach, when you want to do research work. That's when your PhD and your doctorate will be important, right? So yeah, this is the path of architectural education that typically happens. बीआर्च के बाद भी बहुत सारे लोग, बीआर्च 5 साल का कोर्स है, काफी बड़ा कोर्स है, लंबा कोर्स है, उसके बाद बोलते हैं कि नहीं, इसके आगे तो नहीं पढ़ना है। वेरी सक्सेसफुल आर्किटेक्ट्स, बहुत सारे जो सक्सेसफुल आर्किटेक्ट्स हैं, जो आपने बिल्डिंग्स देखी होंगी जिनके वगैरह, बहुत सारे लोग दे हैवंट डन देयर एमआर्च, वो बीआर्च के बाद इमीडिएटली उन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट किया है और या जॉब स्टार्ट किया, एंड दे आर डूइंग क्वाइट वेल। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स एंड व्हाट यू वांट टू डू एज एन आर्किटेक्ट, एंड वेयर डू यू वांट टू टेक योर करियर। जॉब वाइज अगर आप देखो तो कंसल्टेंसी फर्म्स हैं जो डिजाइनिंग एक्चुअल करते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, प्राइवेट डेवलपर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो आर्किटेक्ट्स को हायर करते हैं, या आप खुद की प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो इमीडिएटली, या आप टीचिंग कर सकते हो। बहुत सारे लोग दे डेवलप देयर करियर इन टीचिंग एंड दे डेवलप देयर करियर इन रिसर्च। तो इट्स नॉट कन्फाइंड कि आप सिर्फ बिल्डिंग्स ही बनाए। आप you can become a journalist, you can become a writer who writes about architecture, who writes about cities. तो बहुत कुछ आप कर सकते हो as a job and career prospects, right? अब since we are running out of time, I will quickly take you through कि beyond architecture क्या, एमआर्च स्पेशलाइजेशंस होते हैं एमआर्च के। आप इंटीरियर डिजाइन में एमआर्च कर सकते हो, आप अर्बन डिजाइन में स्पेशलाइज कर सकते हो। अर्बन डिजाइन मतलब जो सिटी से रिलेटेड होता है, थोड़ी सी वाइडर स्केल पे होता है, सिर्फ एक बिल्डिंग के बारे में नहीं, आप एक पूरे एक एरिया के बारे में आप सोच रहे हो। अर्बन डिजाइन सिटी लेवल पे जो डिजाइनिंग होती है, जो मैंने जिसमें स्पेशलाइजेशन किया है, एमआर्च किया है। लैंडस्केप होता है, जो लैंडस्केप तो सभी जानते हैं, जो बिल्डिंग के बाहर का जो भी एरिया है, पेविंग, ट्रीज, ग्रास, वो सारी चीजें वो लैंडस्केप में आती है। हेल्थ केयर डिजाइन में, हेल्थ केयर मींस हॉस्पिटल्स हुआ आपका, उसमें आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। बिल्डिंग सर्विसेज में स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, जैसे वो एचवैक, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स हैं। तो आर्किटेक्ट होकर भी आप बिल्डिंग सर्विसेज में स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। हेरिटेज कंजर्वेशन, पुरानी जो बिल्डिंग्स है, पुरानी इमारतें हैं, उनको प्रिजर्व कैसे किया जाए, उनको कंजर्व कैसे किया जाए, उनको संभाला कैसे जाए, बिकॉज दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, उनकी बहुत वैल्यू होती है एक सिटी के लिए। बहुत सारे सिटीज में हमारे बहुत पुराने बिल्डिंग्स हैं, मुगलों के जमाने की बिल्डिंग, उससे भी पुराने बिल्डिंग, ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम के बिल्डिंग्स। तो ये सारी बिल्डिंग्स अब तक चल रही है, और उसमें से कुछ कुछ बिल्डिंग्स होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको कंजर्व करना है। तो वो एक अपने आप में एक स्पेशलाइजेशन है एमआर्च में। अर्बन प्लानिंग आप कर सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग कर सकते हो, यू कैन गो इनटू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, यू कैन गो इनटू रियल एस्टेट मैनेजमेंट। अब ये तो एलाइड फील्ड्स हो गई है, राइट? अब दूसरी भी फील्ड्स हैं। बहुत सारे जो लोग हैं जो आर्किटेक्चर के बाद लाइटिंग डिजाइनर बन जाते हैं, वो भी एक फील्ड है अपने आप में। इंडस्ट्रियल डिजाइन या प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं आर्किटेक्चर के बाद, आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी करते हैं, ग्राफिक डिजाइन करते हैं, प्रोडक्शन डिजाइन करते हैं, जो टीवी सेट्स और मूवी सेट्स के लिए जो प्रोडक्शन डिजाइन होता है, वो काफी आर्किटेक्ट्स उसमें उसमें एंटर कर जाते हैं। और भी अगर आपको ये सारी चीजों में इंटरेस्ट नहीं है और आपको राइटिंग में इंटरेस्ट है, तो आप राइटर बन जाइए, जर्नलिस्ट बन जाइए। यू राइट अबाउट आर्किटेक्चर, यू राइट अबाउट बिल्डिंग्स, यू राइट फॉर मैगजीन्स। आप टीचर बनिए, प्रोफेसर बनिए। आजकल तो वीडियो गेम डिजाइनिंग में भी काफी आर्किटेक्ट्स इंटरेस्ट ले रहे हैं, बिकॉज वो वीडियो गेम्स जब आप क्रिएट करते हो, उसमें आपको एक अलग से एक दुनिया बनानी है। एक मूवी थी, अगर आपने देखी होगी, नहीं पता, अगर आपको नहीं देखी तो आप जरूर देखिए, इंसेप्शन एक मूवी थी। तो उसमें वो जो बंदा है, वो एक अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड डिजाइन करता है। तो वीडियो गेम जब आप करते हो तो वही है, आप एक वर्ल्ड डिजाइन कर रहे हो, तो वहां पे भी आर्किटेक्ट्स की स्किल्स की जरूरत होती है। इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट, वो भी आप कर सकते हो।
और अभी अगर फ्यूचर अगर आप देखो तो एक एक तरीका था कि पुराने जमाने में एक तरीके से बिल्डिंग्स बनाई जाती थी। अब फ्यूचर में टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट आ गई है। ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, 3D प्रिंटिंग, स्मार्ट बिल्डिंग्स, एआई, बिम, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है आर्किटेक्चर, कंस्ट्रक्शन और सारे डेवलपमेंट में। और इसके ऊपर बहुत रिसर्च चल रहा है। नेक्स्ट 10 years में मैं गारंटी देता हूं कि ये सारी चीजें विल विल सॉर्ट ऑफ ड्राइव द एंटायर फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर, the technology part. So architects will have to be very much knowledgeable about the technology aspects of these constructions also, of these aspects also. So and then lastly, there are a few questions that typically come up on कि admission कैसे लिया जाए. So there are two ways of getting into architecture college. दो exams होते हैं. एक NATA exam होता है, which is National Aptitude Test in Architecture, which is conducted by the Council of Architects. और ये सारे कॉलेजेस में एप्लीकेबल होता है. और दूसरा जो होता है वो जेईई होता है, जो आईआईटीज और ट्रिपल आईटीज के लिए, और एसपीए के लिए, जो स्कूल ऑफ प्लानिंग और आर्किटेक्चर है, उसमें जेईई मेन पेपर 2 यूज होता है. और वहां वो दो, तो अगर आपको उन कॉलेजेस में जाना है, आपको आईआईटीज, एनआईटीज और एसपीएस में अगर आपको एडमिशन लेना है, तो आपको जेईई देना पड़ेगा. बाकी सारे कॉलेजेस के लिए आपका नाटा है. ये आपका 10+2 के बाद होता है. और यहाँ पे जहां तक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैथमेटिक्स ये आपका कंपलसरी कोर्स होना चाहिए. So I think that's it. I'll open it up for questions. किसी को कोई सवाल हो, कोई comments हो, you can ask. This is my contact information. किसी को भी अगर जरूरत हो, please feel free to contact me here, and I'll open up for questions now. Thank you very much, sir. It was very much enlightening and quite detailed. So question and answers are yet to come in, but I do have a few questions from my side. When it comes to the NATA, these days there are many courses with regard to it. What if someone is unable to pay for it? Like, how can they prepare for the NATA exams? That's a very good question. Unfortunately, see, I am not very closely associated with academics right now, and I know that there are many people who do take these courses and classes, but I'm not sure. Of course, I mean they'll definitely charge fees, and I don't know anybody yet who is imparting this sort of skills or knowledge for free. बट एक आप काम कर सकते हो, अगर किसी को इंटरेस्ट है, कि नाटा के पुराने जो क्वेश्चन पेपर्स हैं आप वो गैदर कर लो, ठीक है, और उसमें से देखो कि सिलेबस क्या है. वो सिलेबस फिर आप देन यू कैन कॉन्टैक्ट पीपल हु जो ऑलरेडी आर्किटेक्चर कर रहे हैं, जो ऑलरेडी जिन्होंने इस टाइप का एग्जाम दिया हुआ है. आप एक ग्रुप फॉर्म कर सकते हो. मे बी इट कुड बी अ पार्ट ऑफ एएमपी इटसेल्फ, कि जैसे 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 आईएएस में होता है ना कि एक स्टडी ग्रुप बनाया जाता है, एंड देन वो लोग सब मिलके आईएएस की स्टडी करते हैं साथ में मिलके. सो मे बी इट कुड बी वेरी सिमिलर कि एक छोटा सा network group बनाया जाए, जो people who are interested in NATA and architecture, and then through that group, rather than individually sort of trying to look for resources, अगर collectively अगर हम इस चीज को देखें तो it might be helpful. But if anybody has given the elementary and intermediate art exams in school, जैसे वो मेरे ख्याल से 7th या 8th में या 6th या 7th में एक आर्ट एग्जाम होता है, जिसमें जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है आपके सेंस ऑफ एस्थेटिक्स की, आपकी सेंस ऑफ आर्ट की, उसका टेस्ट लिया जाता है. सो इट इज बेसिकली अ मिक्स बिटवीन एन आईक्यू टेस्ट एंड योर सेंस ऑफ आर्ट एंड एस्थेटिक्स. सो आपका कलर्स का नॉलेज, आपका प्रोपोर्शन का नॉलेज, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है. तो आई एम श्योर देयर आर बुक्स अवेलेबल इन द मार्केट जो आप पढ़ सकते हो, एंड यू कैन प्रिपेयर, एंड एट द सेम टाइम यू कैन ऑल्सो टेक हेल्प ऑफ योर friends or relatives who have already taken these exams, and sort of seek help from them. Thank you very much, sir. We have a question from the attendees.
what is the difference between architect and civil engineer? Right. So this is, one of the first few slides I had presented. Civil engineer also builds buildings, and architecture is also about creating buildings. So what does an architect do, and what does a civil engineer do? Now, civil engineer, पहले अगर देखा जाए, even before 1972, 73, आर्किटेक्चर ऐसे फील्ड नहीं था. Everything was civil engineering. So till I think till 74 or 76, even civil engineers could design buildings, and you didn't need a separate profession like architecture, right? मगर ऐसे realize होने लगा कि architecture actually अपने आप में एक अलग field है, because civil engineering is purely related to कि building को construct कैसे किया जाए, right? और उसकी basic planning कैसे की जाए, कि वो functional कैसे हो वो building, right? It is all about the hardware. अगर मैं बोलूं कि वो it is all about the hardware. Whereas architecture, जब आप buildings बनाते हो या कोई भी आप structure बना रहे हो, it is not only about the concrete and the columns and the beams, right? Like मैंने पहले भी बताया था before in my beginning of my presentation, that through your building you are expressing a lot about the culture, you are expressing a lot about the philosophy of the owner, you are expressing a lot. The building has to be aesthetically pleasing, the building has to be fit well within the city and its framework, it has to fit within regulations, it has to be cost effective. तो ये सारी चीजें हैं वो आर्किटेक्ट करता है. इसकी जो प्लानिंग है कि ये बिल्डिंग में ये कैसे उसकी जो प्लानिंग होगी कि कहाँ पे, अगर सपोज लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं घर का एग्जांपल दूं, तो वो कहाँ पे बेडरूम होगा, बेडरूम का साइज क्या होगा, कहाँ पे विंडोज लगेगी, कहाँ पे किचन होगा, डाइनिंग कहाँ पे होगा और क्यों होगा वहां पे, राइट? क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से हम कैसे चेंज करेंगे, लाइट कैसे हम लाएंगे, हाउ कैन वी मेक द बिल्डिंग वेरी एयरी एंड ब्राइट, हाउ कैन वी मेक इट लुक ब्यूटिफुल, हाउ कैन वी मेक इट कॉस्ट इफेक्टिव. तो ये सारी चीजें जो है आर्किटेक्चर स्टडी के अंडर आती है. सिविल इंजीनियरिंग के अंडर ये सारी चीजें नहीं आती. टिपिकल सिविल इंजीनियरिंग इज मोस्टली मेनली कंसर्न्ड अबाउट कि वो बिल्डिंग को हम कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाए. सो आर्किटेक्ट designs it, architect does the layout, architects create how the building will look, how the building will function, and then the civil engineer takes that idea and says that okay, this is how we'll build it, right? इसमें इतना सीमेंट लगेगा, इतना कंक्रीट लगेगा, इतना, दिस इज हाउ वील डिजाइन द कॉलम्स, कॉलम्स के साइजेस ये होंगे, यहाँ पर हम पेविंग करेंगे, यहाँ पे रूफिंग करेंगे, उसका डेप्थ क्या होगा. तो उसकी जो डिटेल्स है कंस्ट्रक्शन के जो एस्पेक्ट्स है वो सिविल इंजीनियर लेता है, वैसे जो डिजाइन के एस्पेक्ट्स है वो आर्किटेक्ट हैंडल करता है. तो थोड़ा सा समझने में टाइम जाएगा. इट इज नॉट very clear a demarcation. In fact, just as a brief note, in very previous times, right, like in historic times, जैसे आप जो भी जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आप देखते हो वहां पे there were no different professions कि एक ऐसा एक इंजीनियर, एक सिविल इंजीनियर, एक आर्किटेक्ट, एक कॉन्ट्रैक्टर, ऐसे कुछ नहीं होता था. जो एक ही बंदा होता था, ठीक है, उसको मास्टर बिल्डर बोलते थे. जहां पे जैसे मिडिल ईस्ट में वो मिमार नाम होता था. मिमार इज somebody who has an overall understanding of how the building is constructed. वो बिल्डिंग डिजाइन भी करता था, वो बिल्डिंग दिखने में भी खूबसूरत होती थी, वो बंदा उसको स्ट्रक्चरली और सिविल इंजीनियरिंग वाइज भी डिजाइन करता था, और वो बंदे के पास एक टीम होती थी जो वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट भी करती थी. तो वो कॉन्ट्रैक्टर भी होता था बेसिकली. लेकिन अभी क्या है कि इतनी स्पेशलाइजेशन हो गई है, बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्शन जो फील्ड है इतनी कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड हो गई है कि हमें वो स्पेशलाइजेशन की या वो डिवीजन की अब जरूरत है कि हमें कोई एक फील्ड चाहिए जो कंस्ट्रक्शन या सिविल इंजीनियरिंग पे फोकस करे, कोई एक है जो कॉन्ट्रैक्टिंग और बिल्डिंग पे फोकस करे, और कोई एक हो जो ओवरऑल उसकी जो डिजाइन है, उसकी जो लुक है, उसका जो लेआउट है, उसका जो फंक्शनिंग है, उसके ऊपर फोकस करे. सो इसीलिए वो जाके वो डिवीजन हुआ है. बट at one level everything is kind of linked and everybody should work together. I mean it's not possible कि एक बिल्डिंग डिजाइन हो जाए जहां पे आर्किटेक्ट की जरूरत नहीं है और सिविल इंजीनियर ने सिर्फ बना दिया, या ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए जहां पे आर्किटेक्ट ने बना दिया और सिविल इंजीनियरिंग
उसमें उसका पार्ट ही नहीं था। सो ये सारी चीजों की जरूरत होती है, चाहे वो सिविल इंजीनियर हो या मैकेनिकल इंजीनियर हो या स्ट्रक्चरल इंजीनियर हो या आर्किटेक्ट हो, ये सारे लोग मिलकर बिल्डिंग डिजाइन करते हैं और हर एक का अपना अपना एक रोल होता है। Thank you, sir. The next question is, after completing B.Arch and M.Arch, which country gives more job opportunities in future for this course? इट डिपेंड्स। ऐसे क्लियरली तो हम बोल नहीं सकते कि ये कंट्री में ज्यादा आर्किटेक्चर होता है या नहीं होता है, बट वेस्टर्न कंट्रीज टिपिकली आर मोर डेवलप्ड। लाइक आई सेड कि यहाँ पे जो आर्किटेक्ट्स के जो नंबर्स है हमारे कंट्री में, आई गिव यू अबाउट 90,000 1 लाख आर्किटेक्ट्स, वेरी लेस। अगर आप प्रपोर्शन देखा जाए, इवन इन अ कंट्री, इन अ स्टेट लाइक कैलिफोर्निया, द रेशियो ऑफ आर्किटेक्ट्स टू द overall population is something like 1:12 or something, that for every 12 people there is one architect. Or India ka, it might be around every for 1200 people there is one architect. So definitely there are UK में, यूरोप में इन जनरल, यूएस में, जो वेस्टर्न कंट्रीज है, कनाडा में, वहां पे ऑलरेडी वो जो उनके जो सिटीज है, उनके जो लॉज है वो थोड़े से डेवलप्ड है। वहां पे ज्यादा स्कोप है आर्किटेक्चर के लिए। मगर मगर आई पुट अ कैवियट टू इट कि ऐसे जरूरी नहीं है कि आपको अगर सक्सेसफुल होना है, या आपको अगर इफ यू वांट टू लीड अ गुड career, if you want to build a good career, yeah, if you want to be a good architect, or you want to do good work, you have to necessarily go to a foreign country or somewhere abroad to do it. इनफैक्ट जितना काम इंडिया में हो रहा है और एशिया में हो रहा है इस वक्त, वो वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं हो रहा। वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत स्लो काम हो रहा है। वहां पे वहां की जीडीपी ग्रोथ जो है ना, वो 1% 2% है, और इंडिया और एशिया के सारे कंट्रीज की जो जीडीपी ग्रोथ है वो 7% 8% 9% पे चल रही है। तो जीडीपी ग्रोथ इज अ डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ ऑल द वर्क दैट इज हैपनिंग इन द कंट्री. So, and I can sort of vouch for it because I have worked abroad. I have been in the US. I spent a lot of time, and when I come to India, there's so much work happening. There's so much work happening. There's so much construction happening. वो बाहर के कंट्रीज में थोड़ा सा सैचुरेशन लेवल आ गया। तो अगर आपको सीखना है, आपको बहुत काम करना है, so India and Asia is the place you need to be. Thank you, sir. The next question is, any advice for civil or structural engineers interested in pursuing a career in architecture, like short-term courses or interdisciplinary masters, etc.? So, after you have done your structures or civil engineering, if you want to practice as an architect, you will have to go through the 5-year course of architecture. Right now, there might be some colleges or some institutes which, based on your previous degree, maybe bring you in at a second year level or something like that, but I doubt it. I doubt if it is possible. You'll have to go through that 5 years of architecture experience, get a degree, get a license from COA, and only then you can practice as an architect. There are no short-term courses as such. There might be, I think there some institutes, I don't know, not many though, might have a 3-year course on architectural drafting, right, which is not actually architectural design, or you won't be able to practice as an architect, but it's more to do with becoming an architectural technician, right? So the straight answer to that is there is no easy way. Even if you have completed your structural engineering degree, you will have to go through the entire process of architectural education and licensing. Thank you, sir. Next question is, can architect use Vastu Shastra? That's a very tough question. In fact, nobody is stopping anybody from using anything. Vastu Shastra is an ancient knowledge of Indian civilization. It was a part of the ancient, I can say, a knowledge base, which was based on a lot of knowledge about geography, on geology, on climatology, on astrology. So it's a mixture of
because the whole theory was that Vastu means your house or your construction or a building, and Shastra means knowledge, right? Knowledge of building construction. So in ancient times, everything was codified, so that there are rules of about certain things. And I haven't personally, I know the basics of Vastu Shastra, because being an architect, you have to be a little knowledgeable about this thing. But I haven't personally worked on a lot of Vastu specific projects, but I definitely know that it was based on a science in the ancient times, and it has sort of got corrupted, like all things over the many centuries. And now it has become much more of a for lack of a good word, it has become more of a superstition in many ways, and things are being done illogically, without a science behind it. But when it was set up, when it was codified, it was based on a lot of science on uh, geology, climatology, geography, and all of that stuff. Now every culture has this. In Chinese, there is something called as feng shui, which is based on um, uh, again, some rules about how things should be arranged, or how buildings should be arranged. But the culture that we live in is very rational. We believe in science. We believe in things which can be proved, which have a very rational and scientific basis to it. So and that's true even for the study of architecture and any technology, that we do what we are very very familiar and comfortable with. Right now, Vastu falls in that space where it straddles between belief and trust, and religion, and all the softer things in between, right? So people who are comfortable with that, they do practice Vastu Shastra, and they become experts in Vastu Shastra. People who are not comfortable with that, they don't. So it all depends on, as an architect, what you're comfortable with and what your client is comfortable. But there are many clients, especially in India and southern part of India, Hyderabad, I know, for example, are where the clients have a huge demand for buildings designed as per Vastu Shastra. So as an architect, you should be familiar with that. But then there are nowadays experts who are not architects, but they're called as Vastu consultants, who the clients themselves bring in as advisors into projects. Thank you, sir. The next question is there any reason why some people don't go to an architect before building a house? Absolutely no idea. They shouldn't be doing that. See, I'll tell you, jokes apart, they shouldn't be, because every building that needs to be built has to be certified by a licensed architect. That's the law of the land. And if you are building something without an architect's signature or approval, it's illegal. So it shouldn't be happening. And you should always be going to an architect who is registered with the Council of Architects, and who is a qualified architect, and not a quack. Uh, Having said that, it's also very important to understand what kind of value the architect actually brings into the project, because sometimes we feel that, oh okay, इसको क्यों पैसे देने, ये तो बस आके बताएगा कि यहाँ पे कौन सा कलर लगाना है या नहीं लगाना है. And then after they've made these mistakes, they suddenly realize, oh, you know what, actually this needs some sort of expertise. ये तो टॉयलेट तो हम ऐसे नहीं बना सकते, या ये डोर तो ऐसे नहीं खुल रहा है, या ये कितना अजीब लग रहा है, राइट? So it's also very important. I think for a culture to sort of mature to that level, it will take some time. Like I said, in the West, उतना वो maturity है in the overall, that they realize कि हर profession का एक role होता है और एक importance होता है, and that's why you need to bring in some people, right? So अगर आपको कोई, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई बीमारी हो गई, आप डॉक्टर के पास जाओगे, लेकिन इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बीमारी हो गई तो फिर भी डॉक्टर के पास नहीं जाते, राइट? वो बिलीव नहीं करते डॉक्टर के पास जाना. सो इट इज sort of learning, a culture learning over time कि ये जो profession है, it is important, and there are certain values that an architect actually brings, which we may not realize while constructing a building. Thank you very much, sir. That were all the questions.
And thank you very much, sir, for the time, for the enlightenment. It was a very much enlightening session. You covered all the aspects of it. So it was very good, sir. All right. Thank you. Thank you. So I'm glad I today was that is, helpful. yes, sir. Sir, you're on Hello. mute. Yeah. Sorry. No, I said I'm glad I was of help. Can you Yes, hear sir, me? you were. Yes, sir, you were very much certainly. And thank you for taking All your right. time and helping us, sir, to the MP. That is all for today. We will meet tomorrow, inshallah. Tomorrow's topic is on foreign languages. So that is all for today. Have a good day. Take care.